Hello students. So CBSE 12th standard students, today I am going to explain you the first lesson of your textbook Flamingo, and the name of the lesson is the last lesson. See the irony here. I am teaching you the first lesson and the name of the lesson is the last lesson. This short story is written by a French writer, Alphonse. And Alphonse, he is famous for writing short stories, novels, and his stories are a mixture of realism, humor and sentiments. Now in this story shows the change in France through the eyes of a young boy. This story is set in the days of Franco-Prussian War, where France lost the war and German language was imposed on the people of Alsace and Lorraine. So this story highlights the unhappiness of Mr. Hamel, his students and the villagers. The main characters are Mr. Hamel, he teaches French, and Franz, he is one of the students. Now see, this story is based on linguistic chauvinism. What is linguistic chauvinism? That means having overpride in one's language, and this is a negative thing because excessive of everything is bad. Okay, and Germany reflected this pride when it imposed German language on French people. Now what is the message of this lesson? This story tells the students or the readers that stop postponing the things. Most of the time it happens. We have sufficient time, but we postpone things. We reschedule things. We replan it. So he asks the readers or the students to stop delaying the things. Okay, later on you do not know what type of a circumstance you will see in your life that you won't be able to learn all these lessons that you are learning. Suppose internet chala jata hai, you are learning from through the mobile phone. Tomorrow you have exam, कल exam है और चला जाता है वाईफाई चला जाए, फोन खराब हो जाए, तो हमने क्या सोचा था? We thought of preparing the lesson on the last day or one day before the exams. Now see the circumstances. You are not able to do so. Okay, so it evokes the consciousness in readers that do not delay things or do what you can do today. Okay, so do it on the same day. उसी दिन कर दो. Second, what is the message? It arouses patriotic feelings. Okay, what patriotic feelings? Like he is asking to keep your language and culture alive. Okay, so these are the two main messages given by the author. Now you have understood कब की story है? Franco-Prussian War. Okay, फ्रांस हार जाता है और जर्मनी लैंग्वेज वहाँ के लोगों के ऊपर इम्पोज कर दी जाती है. And these German people, they have imposed their language and culture, सब उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं. तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्टोरी में क्या है, ये बच्चा ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में उसको मज़ा नहीं आ रहा, टीचर जो पढ़ाते हैं. तो लास्ट लेसन सर जब क्लास में पढ़ाने आ रहे हैं बिकॉज दे हैव लॉस्ट द वॉर, फ्रांस ने लॉस कर दिया, तो जो उनको सर्कुलर मिला कि अभी फ्रेंच की क्लासेस यहाँ पे अब नहीं होंगी और सबको क्या लैंग्वेज करना पड़ेगा, यूज़ जर्मन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा. तब उस लड़के को रियलाइज़ होता है कि जब सर मेरे को डांटते थे और पढ़ने के लिए कहते थे तब मैं हमेशा उनको सुनता नहीं था. नाउ टुडे ही इज़ रिपेंटिंग फॉर दैट कि इससे अच्छा होता कम से कम उनको मैंने सुन लिया होता. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेसन? So this story highlights the human tendency that we have plenty of time for everything to do the things, but we keep on postponing the lessons. Okay, why do we postpone? We think sometimes we feel lazy, we think that okay, we will do it on some other day.
एंड वो अवेयर कर रहा है, ही मेक्स द स्टूडेंट्स और द रीडर्स अवेयर दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सर्कमस्टेंसेस में चेंज एंड ही मे नेवर बी एबल टू लर्न द लेसन्स। पता नहीं कब परिस्थिति बदल जाए, को घर में कुछ तकलीफ आए, हमने सोचा एग्जाम के एक दिन पढ़ेंगे और हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो हमारे करियर पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तो यही लेसन वो दे रहा है दैट स्टॉप डिलेइंग द थिंग्स, हाँ, बिकॉज यू नेवर नो दैट सर्कमस्टेंसेस मे चेंज एनी टाइम एंड स्टॉप डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग द थिंग्स। तो कब सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएंगी और आप सब चीज को टालना छोड़ दें। तो जो भी करना है डू इट ऑन द सेम डे। हम लोग कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसे। एंड द पीपल ऑफ, सर तो वहाँ मिस्टर हैमिल क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं, और वो विलेजर्स कभी इंटरेस्टेड नहीं थे और वो सोचते भी थे कि अपने बच्चों से चलो यार खेत में काम करा लेते हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल। क्या सीखेंगे ग्रामर ये वो फ्रेंच, छोड़ो, खेत में काम करने भेजते हैं। सो द पीपल ऑफ एल्सेस ऑलवेज थॉट दैट दे हैव plenty of time to learn French, the lessons, the grammar, so they did not give much importance to school education। तो school education को importance नहीं दिया। उन्होंने क्या सोचा, अरे कभी भी बच्चे पढ़ लेंगे, सर तो आते ही रहते हैं, okay? So the first paragraph, what does it show? It shows the natural beauty of the countryside. Now this lesson, the last lesson that was taught by Mr. Hamill, what does it symbolize? Now Mr. Hamill भी सोच रहे हैं कि आज ये मैं लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ एंड इसके बाद हमारी लैंग्वेज को क्या हो जाएगा, वी विल लूज अवर लैंग्वेज एंड वी विल लूज अवर फ्रीडम फॉर फ्रांस। तो अब वो लास्ट लेसन पढ़ाते समय, सो मिस्टर हैमिल सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर फ्रांस। अब उस लड़के का नाम क्या है ना, फ्रांस, वो भी उसका नाम है फ्रांस। ही बिकम्स सेंटिमेंटल, इमोशनल हो रहा है एंड ही फील्स सॉरी फॉर निग्लेक्टिंग हिज लेसन्स। वो कहता था मैं रोज सर की क्लास में डांट खाने की वजह, पढ़ने की बजाय मैं बचता रहता था और मैं निग्लेक्ट करता रहता था, ठीक है। और बार बार बाय रिपीटिंग फ्रांस एल्सेस, सर बार बार रिपीट कर रहे हैं और ऑथर क्या इवोक कर रहा है, अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री। बार बार फ्रांस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे ये देशभक्त है क्या, बहुत ज़्यादा। हम भी तो कहते हैं भारत माता की जय, क्या है, दैट इज पेट्रियोटिज्म फॉर आवर कंट्री। कहना भी चाहिए, प्राइड होना चाहिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, पर ओवर प्राइड इन लैंग्वेज। अब किसी भी भाषा के लिए हम लड़ते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ अलग अलग इतने सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, वहाँ पे भी ओवर प्राइड लोग फील करने लगते हैं, तब फिर वही झगड़े का वही कारण हो जाता है। तो कंट्री क्या है, एक है। सी जब हम अब्रॉड जाते हैं तब हम क्या दिखाते हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ भारत, भारत दिखाते हैं। वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हमें अपने देश का मिल जाता है तो हम क्या उस वक्त लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं कि ये महाराष्ट्र से है कि गुजरात से है कि गोवा से है, नहीं, तब हम क्या सोचते हैं, ही इज भारतीय, वो भारतीय है। हम उससे घुल मिल के सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमको बांध के रखती है एक सूत्र में, ठीक है। तो अभी फ्रांस बहुत सेंटिमेंटल हो गया है। वाई ही सेंटिमेंटल, कुछ लग रहा है कि आई केप्ट निग्लेक्टिंग द लेसन्स दैट वर टॉट बाय द टीचर। हमें जाता भी नहीं था, बहुत बार वो क्लास में भी बंक करता था। तो आज लास्ट क्लास है, आज तो पहले आ नहीं रहा था, अब आया है। तो उसको गुस्सा आता है, कह रहे हैं क्या ये जर्मन पीपल, ये जो पिजन्स गा रहे हैं, कू कर रहे हैं, क्या इनसे जर्मन में ये लोग गाना गवाएंगे, हाँ। तो दिस इज अ सरकास्टिक रिमार्क बाय फ्रांस, वो जो लड़का है। तो वो इस लेसन में क्या बोल रहा है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, हाँ, दिस इज अ सरकास्टिक रिमार्क, ओके। एंड दिस थॉट इट शोज हिज इनर एंगर, उसको गुस्सा आ रही है और वो ऐसा रिमार्क दे देता है। पर कहीं तो कहीं ये ह्यूमरस भी लग रहा है ना भाई, पक्षी और इनके लिए क्या रास्ता, क्या रोका है, नहीं इनके लिए तो रास्ता भी नहीं रोका है और ना इनके लिए लैंग्वेज कोई बार है, ठीक है।
Now this lesson shows, this story shows the marching soldiers. Marching soldiers क्या कर represent कर रहे हैं? The control of Prussia over France. अब हार गया तो कंट्रोल में तो उसको रखेंगे ही ना. And defeat of the French people. अब किसके ऊपर थ्रेटन आया है? उसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस इज अ थ्रेट टू देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर. अब कोई भी देश जो जीतेगा तो दूसरे को दबाव में रखेगा, अपना कल्चर सिखाएगा, अपनी लैंग्वेज सिखाएगा. ठीक है. नाउ मिस्टर हैमिल ही रोट ऑन द बोर्ड. क्या लिख देते हैं? ये देखिए फ्रेंच लैंग्वेज में है. ठीक है. अब आप पढ़ेंगे विवे ला फ्रांस. ठीक है. इसका मीनिंग क्या हुआ? लॉन्ग लिव फ्रांस. फ्रांस जो है लंबा जिए. पर उसको अगर वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में बोलेंगे, हमारे इंडिया में भी कहीं ब्रज भाषा है, कहीं कोई भाषा है, तो क्या वो नेटिव लैंग्वेज में कैसे पढ़ा जाएगा? वी विल ऑफ ये फ्रेंच लैंग्वेज में है. इसका मीनिंग क्या हुआ? लॉन्ग लिव फ्रांस. सो दिस बिकम्स द एविडेंस ऑफ हिज सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म. अब वो सर भी दुखी हैं, मिस्टर हैमिल इवन इज सैड. और लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में वो बोर्ड पे क्या लिख देते हैं? लॉन्ग लिव फ्रांस. तो ये एविडेंस दिखाता है कि समवेयर ही इज इन सैडनेस, वो सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और कहीं कहीं उनके अंदर पेट्रियोटिज्म की भी फीलिंग आ रही है कि आज मैं ये लास्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं इस विलेज में फ्रेंच नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है. सो मैसेजेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रीडर्स को क्या बताया है. दिस इवोक्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इन द रीडर नॉट टू डिले things, stop delaying things, stop rescheduling things, postponing things, because you do not know what is going to happen next. उसके बाद क्या होगा नहीं पता. ठीक है. And this lesson also arouses the patriotic feelings, and he is asking the readers to keep their language and culture alive. कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज और कल्चर को हमेशा जिंदा रखो. Keep it alive at ऑल कॉस्ट. हर तरीके से, हर कीमत पे उसको जिंदा हमें रखना है. तो एज यू हैव अंडरस्टूड दैट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी अभी हमने क्या बताया, किसका है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर का है. तो मिस्टर हैमिल एंग्री हैं क्या? यस, ही इज एंग्री. सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर कौन सी लैंग्वेज लगा दी गई है? उनके ऊपर क्या इम्पोज किया गया है? जर्मन लैंग्वेज. तो वो सारे के सारे वहाँ पे दुखी हो रहे हैं. थोड़ा सा ह्यूमर भी है जब वो कहता है कि क्या पिजन्स कू करेंगे क्या जर्मनी में. ठीक है. अब लास्ट क्लास में मिस्टर हैमिल इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, बट इस लास्ट क्लास में he did not scold friends for coming late to the class. लास्ट क्लास में भी वो लेट गया है, पर सर ने उसको डांटा नहीं. उन्हें मालूम था that this is the last class and this is the last time that he is going to take the French class, and he did not want to scold anyone. तो उन्होंने बड़ी काइंडली उसको समझाया. ठीक है. बिकॉज उसको पार्टिसिपल्स आते नहीं थे, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग दैट चाइल्ड, वो लास्ट क्लास थी, तो ही बिहेव्ड वेरी काइंडली विद फ्रेंड्स. ओके. बिकॉज फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स. और पीयर प्रेशर तो रहता है. व्हेन द टीचर आस्क यू एनीथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन, रियली यू फील पीयर प्रेशर. होता ही है पीयर प्रेशर का. सो सर ने उसको बहुत काइंडली समझाया. ओके. नाउ मिस्टर हैमिल टोल्ड 3 reasons. नाउ मिस्टर हैमिल भी अब 3 रीजंस बता रहे हैं कि वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स. अगर वो फ्रेंच नहीं सिखा पाए तो उसके 3 रीजंस बता रहे हैं. एंड ही इज ब्लेमिंग नॉट ओनली द विलेजर्स, वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं. कह रहे हैं वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच. क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि आज लास्ट डे है. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स दे डिड नॉट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन for the French class. क्यों? Instead of that they wanted them to work in farms. वो कहते थे भाई खेत में काम कर दो, ये तो सब चलता रहेगा. एंड मिस्टर हैमिल अपने को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कह रहे हैं हमने स्टूडेंट्स को, उनको कहीं न कहीं गिल्टी हो रही है. मिस्टर हैमिल सेंड द चिल्ड्रन टू वाटर द प्लांट्स and gave them holiday when he went for fishing. कह रहे हैं मैंने भी एक आध बार ऐसे कर दिया, मैं फिशिंग के लिए चला गया. I did not take the class. Okay. And Mr. Hamill
told the French was the most beautiful and clear language. वो बोल रहे हैं कि French is the logical language in the whole world, and so they must guard this language, because when people are enslaved, okay, so as long as they hold fast to their language, it is as if they had key to the prison. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि उस लैंग्वेज को गार्ड करना है. क्यों? कि अगर हम एनस्लेव हो जाते हैं, किसी के गुलाम भी हो जाते हैं, तो अगर कोई भी एक लैंग्वेज बोल के एक दूसरे की मदद तो कर सकता है, तो इसके लिए हमें अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखना चाहिए. फॉरेन कंट्री का मैंने एग्जांपल दिया. हाँ, तो अभी मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे अपने कंट्री का कोई मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उससे फटाक से बात करने लग जाएंगे. आप यू कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन टॉक इन योर हिंदी, और आपके स्टेट का आ गया, यू कैन स्पीक इन एनी ऑफ योर नेटिव लैंग्वेज, जो भी होगा. तो हमें बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स, वी कैन शेयर आवर डिस्ट्रेस. तो इसलिए वो कह रहा है हम सबको अपनी लैंग्वेज को टाइटली होल्ड करके रखना. और फ्रेंच लैंग्वेज को तो वो ग्लोरीफाई कर ही रहे हैं, दैट इट इज़ अ वेरी क्लियर लैंग्वेज, इट इज़ अ लॉजिकल लैंग्वेज. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेसन. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन गो थ्रू दिस लेसन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. In the upcoming videos, I will start taking the question answers also, and if you find any kind of problem, you can put your questions in the message box. I will answer your questions. Thank you.